Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. So evening, good evening. We're starting with the last part of our work energy power subjective questions. There are a couple of 18 questions I'll be doing. Okay, some of them. So let us start. They are telling you in the question that, can you see the slide, green color? Hello. Yes, sir. Okay, fine. So that is here. Two blocks of mass M1 and M2 are connected by a light string on a horizontal plane. The coefficient of friction between the blocks and the surface is equal to mu. What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the block mass M1 in order to shift the other block? So they are telling you what? That there is a block mass M2 which is connected to a spring. And this mass M1. They are telling you a force is applied to M1. And they want that what minimum force has to be applied so that we want to shift the other block. But can you tell me that how much is the maximum force exerted on the second block? Mu M2. फ्रिक्शन है ना, mu m2g. So can I say if we want to pull m2, okay, the spring force should be, स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएगा ना, जब इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा. इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स एफएसपी ये है. स्प्रिंग फोर्स एफएसपी should be greater than equal to mu m2g. Hello, did you understand this thing? Hello, Hana bolo, yes or no, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is fine. Now, okay. So, अच्छा, और यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन आ रहा है. Maximum value to move him is mu m1g. ये भी फ्रिक्शन है. Okay. अच्छा, we also know one thing, that when will FSP be maximum? When will FSP be maximum? When the spring is taken its maximum stretching. Hello. Yes, sir. By FSP will be maximum when the spring is maximum stretched. Now I'll draw it and show it to you. देखो इधर, ऐसे ये M2 इतना I pull it. तो F ही है. Mu M1g. यहाँ पर can I say this is FSP maximum and this is FSP also maximum, and that is opposing mu m2g. Hello, बोलो भाई. Yes, sir. And can I say if this is at natural length, यहाँ पर extension 0 है, तो यहाँ पर the extension is x maximum. Are you understanding what's happening? Hello, yes or no? अरे बाबा, yes or no? Hello, ठीक है. Yes, sir. Now can
you tell me, if I apply the formula initial kinetic energy plus work done is final kinetic energy. Initial kinetic energy, this is the initial part, and this is the final level. This is the final part. तो initial state में kinetic energy तो zero है. Can anyone tell me initial से final जाने में work done कौन कौन कर रहा है? Work done, Friction and spring force. friction and spring constant. Okay, friction कितना काम sorry ये कितना काम कर रहा है? Force कितना काम कर रहा है? Capital F. Capital F is doing a work F into x maximum. Hello. Hello. Yes or no? Yes, sir. Okay. और कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है? अच्छा, फ्रिक्शन इधर काम नहीं करेगा बिकॉज ये तो मूव नहीं हो रहा है. ही इज एट रेस्ट ओनली. ओके, और आई कैन से एट दिस मोमेंट ही इज ऑन द Verge of motion. वर्ज ऑफ मोशन. तो इधर तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, इधर मूवमेंट हुआ है. तो ये फ्रिक्शन ने काम किया है. ये फ्रिक्शन ने कितना काम किया? माइनस म्यू m1g इंटू एक्स मैक्सिमम. एंड स्प्रिंग ने भी ऑपोजिट काम किया, तो स्प्रिंग फोर्स रहेगा हाफ के एक्स मैक्सिमम द होल स्क्वायर. And can I say at that moment final kinetic energy is zero because we are doing it slowly very much. Hello. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. We are doing it very much slowly because यहाँ पर है ना, ये फोर्स जो है वो मिनिमम कांस्टेंट, ये मिनिमम फोर्स है. यहाँ पर फोर्स है, मिनिमम फोर्स है. मिनिमम फोर्स इसलिए कहते हैं ताकि वो कोई उसको काइनेटिक एनर्जी दे ना. मतलब ये वैल्यू F का और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाए, करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा ना, बिकॉज नेट फोर्स जीरो है ना. अरे आर यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग मैन? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हेलो गेटिंग इट? तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो ये हो जाएगा 2f x मैक्सिमम माइनस 2 म्यू m1g x मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के x. हाफ चला गया है विल बिकम के x मैक्सिमम द होल स्क्वायर. Square x maximum cancel. So can I say kx maximum should become equal to 2f minus 2 mu m1g. Hello. बोलो. Yes, sir. And what is So, but we kx? need X. क्या? हेलो. No, sir, nothing. नहीं ना. अच्छा, what is kx maximum stand for? FSP. अरे भाई सही तो है. हेलो. kx maximum किसके बराबर होता है? kx क्या होता है? हेलो. kx तो FSP. FSP. Can I say FSP should be greater than mu m2g? ये वाला कंडीशन. हेलो. बोलो. Can I say? Yes, sir. Can I say that? अगर आप यहां से देखेंगे तो can I say FSP should be greater than कितना था? FSP should be greater than कितना था? mu m2g. But FSP मुझे कितना मिला? It is kx maximum which should be greater than mu m2g. But kx maximum मुझे तो यहाँ पर मिल चुका है. क्या मिला? कुछ मिला ना पीछे? कितना मिला? ये मिला कि नहीं? 2f minus 2 mu m1g. 2f minus 2 mu m1g should be greater than equal to mu m2g. बराबर है क्या? f should be greater than equal to mu m2g plus 2 mu m1g upon 2. हेलो. Yes, sir. और मिनिमम वैल्यू अगर पूछा है तो इट शुड बी इक्वल टू दैट थिंग ना. मिनिमम पूछा है तो इक्वल टू आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो विदाउट गेनिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, when the first block reaches x maximum position, the other block will be on the verge of its motion. बोलो बराबर है क्या? हेलो.
हेलो हेलो, क्या हो Yes, रहा sir. है? So this is how we do it. कुछ क्वेश्चन है इसमें, आपको कुछ है क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी. ओके. अच्छा, इज एफएसपी कांस्टेंट और वेरिएबल, कोई बता सकता है ये जो एफएसपी है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Variable. वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ एक्स है. कहना इसे एफएसपी मैक्सिमम जब रहेगा तभी ही ये ब्लॉक को मूव कर पाएगा. दैट इज देयर. ओके. एन एफएसपी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टू एमजी. काम होगा एन एफएसपी इज के एक्स मैक्सिमम. गेटिंग इट? हेलो. Yes, sir. फाइन. ठीक है. फाइन. I'm coming to question number 3. क्वेश्चन नंबर 2 तो देखा हुआ है हमारा, ये हम कर चुके हैं ना पहले भी. हेलो, याद है ना? सेमी सर्कुलर चेन होता है, गिरता है नीचे. हेलो, यू नो इट Yes, राइट? sir. सेम सम वी हैड डन इट, so it is the same ditto sum. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. A baseball having a mass 0.4 kg is thrown, so that the force acting on it varies with time as shown in the figure. The corresponding velocity time graph is shown in the second part. Determine the power applied as a function of time and the work done till 0.3 seconds. अब इधर ध्यान देना, फोर्स जो है इन द फर्स्ट ग्राफ, इफ आई टेल यू फर्स्ट ग्राफ के बारे में अगर बात करेंगे, कैन आई से फोर्स दो टुकड़ों में है. कैन आई से टिल टाइम लेसर देन इक्वल टू 0.2 seconds द फोर्स इज 800 न्यूटन. हेलो 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 हेलो, बोलो. Yes, sir. And in the second graph, what is the case, that how much is the speed? Time less than suppose 0.2 seconds ही पकड़ता है. Can I say v is a function of time ना? अगर y is mx plus c लिखूं मैं, y is v is equal to m कितना है 20 upon 0.2. टू t plus c 0 है, बराबर है क्या? हेलो. Yes, sir. ऐसे v will become 20 by 0.3 into t. ये मिला, और ये मिला f. ओके. फॉर टाइम लेस देन 0.2 seconds, how much is the power? General formula F bar dot V bar. fv. They are applied in the same direction. ओके. तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा 800 इंटू वेलोसिटी 20 by 0.3 इंटू. ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया आपको. कितना मिला? और एक जीरो डाल दो, बाई 3 इंटू टी. चलेगा क्या? हेलो, Yes, sir. सही तो है. ये मिल गया हमको. टाइम लेस देन 0. अच्छा, हम बात करते हैं अभी टाइम ग्रेटर देन 0.2 से. ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा. क्या होगा पावर? पावर के बारे में क्या ख्याल है? पावर सॉरी, फोर्स के बारे में क्या ख्याल है? फोर्स, फोर्स क्या है बेटा? फोर्स कितना है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करना पड़ेगा ना इसका इक्वेशन लिखने के लिए. हेलो, अरे कुछ आता है, पता है कि नहीं आप लोग को? कहना से इसका स्लोप इज -800 बाय 0.1, बराबर क्या? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
तो इसको अगर मैं y इज mx प्लस c लिखने की कोशिश करूँ, y इज mx प्लस c लिखने की कोशिश करूँ, y तो f है, m इज माइनस 800 बाई 0.1, x इज t, t नहीं आएगा बिकॉज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया तो कितना हो जाएगा t की जगह। अरे यार ये सर ने सिखाया क्या मैथमेटिक्स के टीचर ने? minus 0.2. हेलो, Yes, sir. ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ना उधर, यस और नो, प्लस सी इज 800, यस और नो। हेलो हेलो, Yes, yes, sir. ये मिला फोर्स। अच्छा वेलोसिटी तो उतना ही है जो था पहले, 20 बाई 0.3 इंटू टी, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज, ये कितना होता है ये देखो जरा, -8000 t माइनस 2 टाइम जाएगा, 8 2 16, हेलो यस और नो, 160, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? हेलो यस और नो, ये हो गया 160, 1600. हाँ 1600, सॉरी, बराबर है। हेलो, Yes. ये बनेगा -8000 t माइनस 800, 20 t बाई 0.3, हो जाएगा -8000, वही होता है -16000 स्क्वायर बाई 0.3 -8 2 1600 बाई 0.3, यस और नो। हेलो, क्या कह रहा हूँ मैं, Yes, sir. समझ में आ रहा है? बट Yes. बेटा ये तो मिल गया, ये पावर आ गया ना, ये पावर हो गया ना हमारा, दोनों माइनस ही है क्या, ये एक प्लस आएगा यहाँ पर, कुछ गलती वलती तो है नहीं ना? गलती कर दी, सही है क्या? हेलो, इज दिस करेक्ट? t minus 0.3, Yes, sir. okay, is max plus c -8000 t माइनस, ये गलती हो गई देखो ना, 8 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट है ना? अरे भाई ये एम एक्स, ये है ना, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा यार, ये प्लस हो जाएगा ना? हेलो, Yes, sir. वही मैं कह रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? हाँ, एक मिनट फिर से कर लेते हैं ना। How much? -8000 t बराबर ना, प्लस 2 1600 प्लस 800 इंटू बी 20 बाई 0.3 इंटू, यस और नो, अब सही है क्या? हेलो हेलो, नहीं ये 16800 चला जाएगा ना, 16800, So that is 1600. 1600 ही है, 1600 है, 2400 हो गया, यस और नो, भाई करेक्ट है क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. ये देखो ना, ये कितना आता है, -8 16 16, 1 2 3 4 5,
by 3 into t square plus 48,000 by 3 into t. ये कुछ सही है लिख रहा है मेरे को। हेलो, अब सही लग रहा है, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. अब ये ठीक है। ये मिल गया पावर यहाँ पर। अब आपको क्या मांगता है? फाइंड द वर्क डन टिल 0.3 सेकेंड। ओके, व्हाट इज वर्क डन व्हेन पावर का फंक्शन इज गिवन? देन व्हाट इज वर्क डन? Integration of t with respect to time. dt, यस। तो हम लोग दूसरे पेज पे करते हैं। वर्क डन को कैन आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ p dt। यहाँ पर देयर आर टू पावर्स, वन इज फ्रॉम 0 to 0.2 p dt प्लस दूसरा वाला is 0.2 to 0.3 p dt। हेलो, यस और नो? हेलो, Yes, sir. 0 to 0.2 के लिए हमारे पास जो पावर था दैट वाज 6 into 10 raised to 4 by 3 into t। 16 into 10 raised to 4 by 3 into t dt। इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस 0.2 to 0.3 p dt। यहाँ पर ये हो जाएगा 16 into 10 raised to 5 हो जाएगा, बराबर है क्या? हेलो, by 3 t square। माइनस आ गया, प्लस देयर इज अनदर टर्म आल्सो is 48 into 10 is to 4 by 3। 48 into 10 is to 4 by 3 into t dt। हेलो, हेलो बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पर ये जो भी नंबर्स है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा एंड दिस विल बी 16 into 10 is to 4 by 3 t square by 2 0.2 square by 2 प्लस एक्चुअली माइनस हो जाएगा तो ये माइनस है यहाँ पर 16 into 10 is to 5 by 3 will become t cube by 3। तो 1 by 3 बाहर लेते हैं, 0.3 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब। हेलो, प्लस 48 into 10 is to 4 by 3 t square by 2। तो by 2 तो बाहर निकाल देते हैं, 0.3 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर। इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेना, विल गेट द आंसर। हेलो, डिड यू गेट इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. So this is how you generally do it. It's more or less based on calculations। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 भी करता है, 4 पर आता है। A body of mass 2 kg is being dragged with a uniform velocity of 2 meter per second on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between the body and the surface is 0.2. G is given. Find the amount of heat generated. Can I say heat is a dissipative energy? And who is a dissipative force? Friction. Friction. Can I say work done by friction is nothing but heat energy dissipated? Hello? अरे भाई बोलो। Yes, sir. Yes or no? Can I say work done by friction is what? कितना रहेगा? हाँ, म्यू mg into s ना, हीट बराबर क्या? Yes, sir.
म्यू एम जी इंटू एस। म्यू कितना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। म्यू कितना है 0.2, एम कितना है 2 है, जी का वैल्यू 10 है, एस कहाँ से मिलेगा? डिस्टेंस कैन आई राइट इट इज 2 2 into इंटू 5. टाइम, दैट इज 2 इंटू टाइम कितना है, कितना टाइम तक बोल रहा है? हीट जनरेटेड 5. इन 5 सेकेंड, तो ये 5 हो गया, ये हीट मिल गया। बढ़िया, आंसर किस में आएगा आपको? ये 440, 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 5 40, 40 जूल है, बराबर है क्या? बट आपको जे का वैल्यू दिया है, इक्विवेलेंट ऑफ हीट दिया है, तो उसको कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करता है? हेलो, 1 calorie is equal to 4.2. डिवाइड बाय 4.2, व्हेनेवर जूल टू कैलोरी डिवाइड बाय 4.2, मैंने उल्टा जाना है तो ये मल्टीप्लाई, बराबर क्या? हेलो, यस और नो? अरे भाई यस और नो, कम ऑन मैन। Yes, sir. जमीन पे ड्रैग हो रहा है, जितना एनर्जी खर्च होगा वो हीट में बदल जाएगा। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन, जनरली थोड़ा सी अप्लाई करेंगे तो आना चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो मेरी बात सुनो। A spring mass system is held at rest with the spring in the relaxed length at a height of h. Relaxed length मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक्सटेंशन Natural अभी length. कितना है? 0, नेचुरल लेंथ है, बराबर है क्या? Above the ground, determine the minimum value of h. मिनिमम वैल्यू ऑफ h किधर से फेंकना चाहिए, किधर से ड्रॉप करना चाहिए, so that the system has a tendency to rebound after hitting the ground. ओके, मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो। ओके, कैन आई से ये टाइम 0 है। आर यू देयर? हेलो, Yes, sir. कैन आई से आफ्टर अ सर्टेन टाइम t1 ये नीचे पहुंचा m2। स्प्रिंग अब तक दबा नहीं है, स्प्रिंग अब तक नेचुरल लेंथ में ही है, बिकॉज दोनों के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो स्प्रिंग दबेगा नहीं। स्प्रिंग कब दबेगा? जब वो जमीन पे पहुंच जाएगा, बराबर है? हेलो, Yes, sir. कैन आई से इसने जब हाइट नीचे गई है, अगर हाइट नीचे आ रहा है m2, तो ये भी हाइट नीचे आ रहा है, सो हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ m1 एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड एट अ हाइट h? हेलो, बराबर है क्या? Yes, sir. दिस इज व्हेन इट जस्ट रीचेस ग्राउंड, बराबर क्या? हु m2 जस्ट रीचेस ग्राउंड, बराबर कह रहा हूं ना मैं? हेलो, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल गलती हो तो बताओ मेरे को, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. मतलब m2 जस्ट जमीन पे टच हुआ है, ओके, तो हिट हो गया, वो जमीन पे टच हो गया। m1 के पास अभी भी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh है, और स्प्रिंग इज देयर राइट नाउ इन विच लेंथ? Natural length. नेचुरल लेंथ होनी है, क्योंकि अभी वो दबना शुरू होएगा, बराबर है क्या? कैन आई से आफ्टर अ सर्टेन टाइम t2 वो दबा, he presses, then after pressing, when he reaches up again, हेलो, कैन आई से दिस इज योर नेचुरल लेंथ, बराबर क्या? हेलो, हेलो, Yes, sir. अब क्या होगा? मुझे किसको उठाना है क्वेश्चन के मुताबिक? M2. m2, तो कैन आई से m1 कहाँ जाना चाहिए? अगर m2 को आपको उठाना है एट अ सर्टेन लेटर इंस्टेंट, कैन आई से ही शुड बी स्ट्रेच्ड, yes or no? And this fsp, this is m2g, can I say for this to be lifted, fsp should be greater than m2g? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अरे यार ये थोड़ी देर पहले ही ऐसे कुछ सीखा था ना हम लोगों ने, तो कैन आई से ये तो ऊपर चला गया, m1 है ये, बराबर क्या? हेलो, 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 यस और नो? Yes, sir. अच्छा, फाइनली ये जाके रुक गया, रेस्ट पर है, और उसने इसको उठा लिया, ये एफएसपी ऐसे भी आएगा, खींच के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फाइनली जाके ऊपर जाके रुक गया। गेटिंग इट?
हेलो, getting it? Yes, sir. Okay. Now, okay, मजा आएगा सब लोग, मेरी बात सुनो। कोई बता सकता है कितना प्रेस करना है मुझे? कितना प्रेस करना है मुझे? ये कितना अंदर तक प्रेस होना चाहिए? ये कितना अंदर तक प्रेस होना चाहिए ताकि वो ऊपर इतना उठ पाए, ताकि जो एफएसपी आ जाए ना वो M2G आ जाए। बराबर है क्या? हेलो, दिस इज ऑल्सो M2G ना? यस और नो? Yes, sir. हेलो, मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ कि ये इसको कितना अंदर M2G by प्रेस K. कर, इसको अंदर प्रेस कितना करना है? M2G by K? नो 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 नो, बिकॉज वो M1G by K तो ऊपर जाएगा ना, पहले नेचुरल लेंथ तक आएगा। हेलो, फिर M2G by K जाएगा ना। हेलो, आर यू गेटिंग इट? गौतम, यू आर करेक्ट कि ये जो चीज है ये M2G by K है। बराबर है क्या? So M1 plus M2G by K. हाँ हाँ, ये जो चीज है वो होना चाहिए M1G प्लस M2G by K। बराबर क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. बिकॉज वो M1G खुलेगा और M2G by K ऊपर जाएगा ना। हेलो, आई डोंट नो व्हाट एम आई स्पीकिंग यार, ये लास्ट टाइम का सम है। हेलो, आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? आर द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. भाई, इतना प्रेस करना ही पड़ेगा। अगर उसको ऊपर लिफ्ट होना है नेचुरल लेंथ से तो उसको M2G by K ऊपर पुल होना है, और M2G by K अगर ऊपर पुल होना है तो नेचुरल लेंथ तक उसको आना पड़ेगा ना स्टार्ट में। So it should be M1G by K plus M2G by K. This whole concept was done last time. Again and again, who will repeat यार? ये चीज है। Getting it? बाबा, yes or no? सही है। Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, अब मजा आएगा। अभी मेरा फेवरेट वाला फॉर्मूला कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, और यहाँ पर तो M2 कुछ हिल रहा तो नहीं है, तो M1 के बारे में ही बात करना है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1? हाफ M1 V स्क्वायर। बराबर क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा, वर्क डन क्या हुआ? व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल? सीधा इनिशियल टू फाइनल, इतना हाइट चढ़ गया ना ऊपर। So can anyone tell me what is work done by Minus gravity? Minus M1 M2 G square by K. G नहीं, M1G H ना। हेलो 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 हेलो, सही लिख रहे हो क्या? Yes, sir. अरे MGH ना, work done by gravity. Can Yes, sir. anyone tell me what is work done by spring? Minus half K H square। हेलो, उतना खुला है ना भाई, सीधा ये पोजीशन से ये पोजीशन की तरफ जाओ। We just going from year till year, तो इतना खुल गया, वो इतना स्ट्रेच हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो अंदर ही आएगा, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो। एनीवन कैन चैलेंज दिस थियरी? बोलो भाई, कुछ रॉन्ग वॉन्ग है तो बताओ मेरे को। तो सही है, तो हाफ M1 V स्क्वायर, V स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2GH बेटा, माइनस MGH। और ये H कौन सा H है? ये वाला H है। हाँ भाई, हेलो, Yes, sir. ये M2G by K है माइनस KH स्क्वायर। ये वो वाला H है, ये वाला H नहीं है, ये H वाला is M2 G by K the whole square, तो M2 square G square by square। Are you understanding? हेलो 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 हेलो, बोलो भाई। Yes, sir. 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया M1GH माइनस M1 M2 G स्क्वायर बाई K माइनस इज इक्वल टू 0 है।
माइनस के और ये के तो उड़ ही गया, ये हो जाएगा m2 स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से h अगर हम साइड में लेते हैं, यहाँ पर आएगा m1 m2 g स्क्वायर बाई k प्लस m2 स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2k अपॉन m1g। बोलो यार, इतने हाइट से छोड़ना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. हेलो, ताकि वो ऊपर उछल जाए। एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन लास्ट टाइम प्रीवियसली, सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग। कॉमन वॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यू कैन डू द कॉमन आल्सो, बट दिस इज द रियल आंसर। ओके, एंड ये लास्ट पॉइंट क्या बोला है? गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ m2 एंड ग्राउंड इज 0, मतलब इट इज एन Elastic collision. इनइलास्टिक कोलिजन है, तो वो चिपक जाएगा ग्राउंड से, रिबाउंड नहीं करेगा। हेलो, इसकी बात कर रहे हैं। इसका जब ये ग्राउंड पर पड़ता है सीधा चिपक जाता है, तो इसको बोलते हैं इसका E0 है ग्राउंड का। ये सिखा हुआ अभी, नेक्स्ट लेक्चर में कल सिखा दूंगा मैं आपको कोलिजन्स के बारे में। आई विल टीच यू सो यू विल गेट एन आइडिया। मतलब ग्राउंड पे जैसे m2 पड़ा वैसे ही वो चिपक गया उधर। हेलो हेलो, यस और नो? अरे सही तो है, करेक्ट है क्या भाई? हेलो, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन which is, this is the main concept है। ये कितना दबना चाहिए और कितना उछलना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। This is the whole thing. Now I'll do the 9th question पर आते हैं। What is 9th question telling you? A body of mass m slides down on an inclined plane at an angle of alpha. The coefficient of friction is mu. Find the rate at which potential gravitational potential energy is dissipated. Rate of energy क्या होता है? Rate of energy, indirectly rate of energy क्या होता है? अरे क्या होता है? पावर होता है ना। Is indirectly asking you instantaneous power, and it is dissipated energy. Dissipated energy कौन है? हेलो, अभी Friction. सिखाया था, फ्रिक्शन है ना। तो जब एक इंक्लाइन प्लेन से कोई भी ब्लॉक नीचे आएगा, मालूम है mg sin अल्फा इसको नीचे लेकर आएगा, बट डेसिपेशन के लिए यहाँ पर म्यू mg cos थीटा होना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेसिपेशन नहीं होगा, हीट बन के। तो रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डेसिपेटेड। डेसिपेटेड मतलब हीट बन के उड़ता है। So this is only the culprit now, which is doing the thing at any time t. So this is time 0. Can I say at time t he came here? Can I say he is coming from initial velocity 0? Can I say he will acquire some speed? He will become u plus at. Hello, hello, hello. अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे आते समय? G sin alpha minus mu G cos alpha. माइनस म्यू जी cos थीटा। थीटा ले लिया मैंने, चलेगा ना, इनटू टी। ये तो सबको आना चाहिए। तो पावर क्या रहेगा? डेसिपेटेड पावर, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी at that instant of time। फोर्स कौन सा डेसिपेटिव है? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्या हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं? ये क्या रहेगा? म्यू एम जी कॉस थीटा, या अल्फा कर देते चलो, इंटू वी को लिखेंगे जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा टू टी। हेलो, दिस इज द आंसर। This is the instantaneous power which is dissipated as a function of time. हेलो भाई, करेक्ट है क्या? Instantaneous power dissipated as a function of time by friction.
because friction is a dissipative force. Gravity is not. Huh? Gravity is not. Okay. तो यार ऐसे ही टाइप सब टाइप के क्वेश्चंस हैं. चलो भाई, I'll go to the सकता है 9th 10th वाला भी कर लेते हैं. चलो 10th वाला. You can do everything only. A particle moving in a straight line is acted by its force, which works as a constant rate. इसका क्या मतलब है? A particle is moving in a straight line is acted upon by a force, which works as a constant rate. Yes, sir. What do you mean by this? Who is constant? जब भी ऐसे वर्डिंग आते हैं ना कि कांस्टेंट रेट पर वर्क और रेट और कांस्टेंट तीन वर्ड है. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन? पावर. सो वर्क्स एज कांस्टेंट रेट का मतलब होता है पावर इज अ कांस्टेंट. फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. हाँ भाई, हेलो. वर्क डन is done at a constant rate. When the power is applied is constant and it changes its velocity from u to v over a distance x. Prove that the time taken is this much. Fine. अब मैं एक फॉर्मूला हमको पता है कि power is work done upon time. Hello, average power is work done upon time, but average power and instantaneous power same है ना यहाँ पर. हेलो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? हेलो, Yes, sir. दोनों ही तो P है यार. Constant. पहले हम लोग एवरेज पावर की बात करते हैं. एवरेज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. दिस इज P. वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन T. बिकॉज सबके साथ में प्ले करना है. देखो ना, T भी है, U भी है, V भी है, X भी है. बराबर है क्या? हेलो हेलो. अच्छा, तो यहाँ पर पावर को तो P रहने देते हैं. कैन आई से दिस विल बिकम हाफ M V square minus U square is change in kinetic energy by T. Are you there with me, man? Are you there with me? तो यहाँ से T will become half T M. तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. तो एवरेज पावर की कहानी खत्म. एवरेज पावर का मैंने काम खत्म कर दिया. देखो, एवरेज पावर काम खत्म. एवरेज पावर इज. अब इंस्टेंटेनियस पावर. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला? अरे बोलो. हेलो हेलो. इंस्टेंटेनियस पावर इज P. F को लिख सकते हैं ma into V. ma, but a is dv by dt because force is not constant. तो a will not remain constant into V. इसको P dt will become M V dv due to V 0 to T. ये हो जाएगा PT is equal to mv square minus u square by 2. हेलो हेलो. अरे बेटा हाँ ना बोलो. करेक्ट है क्या? ये तो वही आ गया ना. ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पर. बिकॉज आई वांट इन टर्म्स ऑफ x ऑल्सो. यहाँ पर मैंने गलती कर दी. ये वही सेम आंसर आ गया. I'll go from 0 to x. तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखूंगा? इन टर्म्स ऑफ x मांगता है तो. हेलो, आर यू देयर? तो p लिखता है ma v.
A. V dV by dx into V. P dx will become equal to M V square dV 0 to x U to V. ये हो गया Px will become M by 3 V cube minus U cube. हेलो हेलो, Yes, sir. अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्या मांगता क्या है आपको? Time. और आंसर में देखो P नहीं है, ये आंसर में देखो P नहीं है, तो P को एलिमिनेट कर सकता हूं मैं? हेलो, Yes, sir. खाली ये देखो ना, ये P जो है, इसको अगर मैं P को एलिमिनेट करना चाहूँ तो ये X जो है वो नीचे आ जाएगा, बराबर है क्या? हेलो, एंड इसको उठा के कैन आई पुट इट हियर? हेलो, आर यू देयर और नॉट? सो T will become M by 2P, where P will become M by 3x V cube minus U cube into V square minus U square. हेलो, करेक्ट है क्या? ये देखो ये उड़ गया, टी का वैल्यू क्या आया? 3/2, एक्स भी ऊपर गया, ये क्या आता है देखना? हेलो, ये वही रहेगा ना, v प्लस यू, ये तो लास्ट टाइम किया था ना हम लोग ने, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू वी। हेलो, Yes, sir. तो मैच कर रहा है क्या? So this is how you need to play with the thing by looking at the question. क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, u भी चाहिए, u भी टर्म है, v भी टर्म है, t भी है, x भी है, पावर भी है, तो ये सबको इनकॉर्पोरेट करके आपको लैंग्वेज बनाना है। हेलो, आर यू देयर? भाई क्या हो रहा है? Yes, sir. और नो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। We'll see. Find the speed of both the blocks at the moment when M2 hits the ball after the block are released from rest. अब मेरी बात सुनना बेटा सब लोग, ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल केस है। कैन आई से अगर ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर हुआ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अरे भैया, यस और नो, करेक्ट है नो? ओके, अब ये क्या बोला है फाइनली, क्या होता है, ये जो दीवार है, दीवार तो ए बी है, ये ऐसे था ना, कैन आई से इसको ऐसे आके हिट करना है इसको। यस और नो? तो कहना इसे, ये जो रस्सी है ना M2 से लेके पुली तक, तो ऐसे हो जाएगी। अरे भैया, यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये और ये उतना ऊपर चढ़ जाएगा जितना एक्सटेंड, जितना खिंचाव हुआ है। पहले M2 से लेके पुली तक 1 मीटर था। हेलो, बराबर है क्या? Yes, हेलो, sir. अच्छा ये 2 मीटर है, ये भी दिया है 1 मीटर, तो अगर ये 1 मीटर था, कहना इसे यही रस्सी नीचे आई तो ये भी 1 मीटर हुआ। Yes, तो sir. ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया मेरा बच्चा? √5. तो कहना इसे, ये जो M1 है वो कितना ऊपर चढ़ा? कहना इसे, जितना वो रस्सी नीचे, यही ना, दैट इज √5 - 1। हेलो, थोड़ा Yes, सोच sir. के देखो यार आप लोग। हेलो, यस और नो? Yes, sir.
भाई जितना रस्सी टाइट हुई, पहले 1 मीटर पर वो शान था, अब ये इधर से गिरकर ऐसे आ गया, ये रस्सी तो ऐसी हो गई ना, ये जो रस्सी थी इधर जो ये रस्सी की तरफ देखो आप लोग, कंफ्यूजन होता है इसमें थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। ये रेड रस्सी की तरफ देखो आप लोग, रेड रेड वाली, इसको मत देखो। कहना इसे लाल रस्सी ऐसी हो गई। हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो पहले वो लाल जो रस्सी थी वो 1 मीटर थी, अब ये कितनी मीटर हो गई भाई? Root 5. 5 मीटर। तो कितना टाइट हुई वो रस्सी? हेलो, फाइनल 5 डिस्टेंस minus 1. माइनस इनिशियल डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट ना, फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइटनेस। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? तो कहना इसे ये जो चीज है ये ऊपर चढ़ेगा ना, ये ऊपर कितना चढ़ेगा, वही तो कह रहा है, ऊपर चढ़ेगा बाय √5 - 1 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, कंफ्यूजिंग है जो स्टूडेंट्स लोगों को समझ नहीं आती है। वैकेंट से फाइनल लेंथ हो चुका राइट √5, इनिशियल लेंथ वाज 1 फ्रॉम द ओरिजिन, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है ना, तो रेफरेंस से इनिशियल डिस्टेंस इज 1, रेफरेंस से फाइनल डिस्टेंस इज √5, तो उसमें टाइटनेस कितना हो जाएगा? √5 - 1, यस और नो? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कहना इसे ये जो जाएगा ये ऐसे गया टक 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 और सीधा ऐसे हिट किया, सही है क्या? हेलो हेलो, ऐसे हिट करेगा ना, और कहना इसे इस समय इसका स्पीड हो जाएगा v1, बिकॉज दोनों में एक्सेलरेशन सेम नहीं है दोनों का, वो मैं बता दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कैन आई से वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, मैंने एक चीज आपको बताई थी, याद है? वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हैज टू बी द सेम। तो अगर ये इसका कंपोनेंट हम लोग पकड़ते हैं इधर v2, इसको अगर हम थीटा पकड़ेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। कहना इसे ये कंपोनेंट जो हो जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? भाई ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा v2 cos थीटा। कहना इसे अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड्स आर द सेम, पता है ना आपको? तो कहना Yes, इसे, sir. अरे भाई यस और नो करेक्ट है क्या? या तो टी डॉट वी करके देखो, वही तो होता है। कैन आई से v1 इज अलोंग द स्ट्रिंग शुड बिकम इक्वल टू v2 cos थीटा। ये सही लिख रहा हूं क्या मैं? हेलो, या तो टी डॉट वी करके देखो ना। अरे ये समझा सबको? अरे बेटा हाँ ना बोलो, ये सब है ना हार्ड क्वेश्चंस है यार। या तो आप टी डॉट वी करके देखो, इसका टी ले लो और इसका टी डॉट वी करो, टी वी cos थीटा, तो थीटा कितना रहेगा इधर? जो भी रहेगा ये थीटा होगा ना बेटा। हेलो, उससे भी वही आंसर आएगा आपको, उससे भी वही आंसर आएगा आप लोग को। ओके, टीवी कॉस ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बराबर क्या? एंड 180 माइनस थीटा इज थीटा ओनली ना। हेलो, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, यस और नो? ठीक है, चलो बाबा ये चीज समझ गया। नाउ कैन यू टेल मी, कैन आई अप्लाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी? कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन कितना कितना हुआ? चलो, m2 ने कितना काम किया? ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना काम किया m2 पर? हेलो, M2G. m2 g, h कितना है? 1 मीटर है, बराबर है क्या? नीचे जा रहा है। m1 ने कितना काम किया? ग्रेविटी ने कितना काम किया m1 पर? Minus M1G into √5 - 1. बहुत सही है। और कुछ काम हुआ है? नहीं, ग्रेविटी है ना, स्प्रिंग ब्रिंग तो है नहीं। इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, Yes, sir. बिकॉज v1 v2 सेम नहीं है भाई, तो दोनों है, दोनों को
एनर्जी लेना है एंड इट इज कंस्ट्रेंट मोशन, यहाँ पर तो हो चुका, अब वैल्यू है आपके पास m1 और m2, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। m2 कितना है बेटा 2 जी, दैट इज 20 into 1 माइनस m1 कितना है 0.5 into g is 10 root 5 minus 1 is equal to half m1 is 0.5 v1 square plus m2 2 into v2 square, बट इसको v2 square लिख देंगे। अब इसमें आप उठा के v1 v2 cos थीटा डाल देना। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज cos थीटा इन द डायग्राम? अरे भैया 2 ये by भी root यार, 5. cos थीटा इन द डायग्राम इज कितना है 2 by root 5। ये भी हो गया। अब तो कर सकते हो ना? हेलो हेलो, अब तो कर सकते हो ना बेटा? Yes, sir. यार ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये cos थीटा भी मैंने फाइंड करके दिया, अभी क्या चाहिए यार? और जैसे मैंने आपसे कहा था, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आप एवरी सेकंड क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग बाय दिस मेथड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही चीज है। ओके, दिस इज हाउ यू डू इट। सही है ना भाई? हेलो, चलो 14 सम पर आते हैं, 14 क्वेश्चन। अरे भाई, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग ये, यस और नो? Yes, sir. फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, एक दो सम और। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ आइस with a mass 0.12 kg is placed on a horizontal compressed spring mounted on a horizontal tabletop that is 1.9 meter above the floor. The spring has force constant 2300 Newton per meter and initially the compression is this much. मतलब spring को हमने दबा के रखा है, बराबर है क्या? हेलो हेलो, दिस इज इन compressed state and कितना x है इसका 0.045 मीटर, बराबर क्या? हेलो, Yes, sir. the mass of the spring is negligible. The spring is released and the block slides along the table and goes off the edge and travels to the floor. If there is negligible friction between the ice and the table, what is the speed of the block when it reaches the floor? कोई दम नहीं है, एकदम आसान है। देखो मेरी बात सुनो, ये टेबल है, इसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग रखा, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया और यहाँ पर हमने ब्लॉक रख दिया। ये अटैचमेंट नहीं है इसका, इट इज नॉट अटैच्ड। ऐसे ही स्प्रिंग को मैंने दबाया और छोड़ दिया। आई एम नॉट डूइंग एनी नंबर्स और एनीथिंग, हम लोग कॉन्सेप्ट बता के आपको छोड़ देंगे। तो कैन आई से ओके, क्या होगा मेरी बात सुनो, कंप्रेस करके मैं छोड़ दूंगा, वो अपने कौन से पोजीशन पे आएगा बेटा? Natural length. नेचुरल लेंथ पर आएगा स्प्रिंग, और इसको बोलेगा टाटा बाय बाय, नाउ यू गो विद द स्पीड ऑफ वी मैक्स, बराबर क्या? हेलो यार बोलो, नेचुरल लेंथ ना, आर यू देयर So और I नॉट? wanted to extend little beyond natural length. हाँ, बट उसने तो छोड़ दिया ना, स्प्रिंग ने मास को छोड़ दिया। अभी हम लोग को मास में इंटरेस्ट है, हम लोग को स्प्रिंग तो पीछे छूट गया ना बेटा। हेलो हेलो, Yes, sir. spring is not attached to that point, it is just matlab it is not attached, this point is not attached, it is not attached, are you getting it? तो स्प्रिंग के ऊपर तो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा ना अंदर की तरफ, जो स्प्रिंग के स्पीड को कम कर देगा। हेलो गौतम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो ये जो ब्लॉक है वो बोलेगा भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरे पास तो इतना ही स्पीड है, और ब्लॉक चलता हुआ चला जाएगा। कहना इसे वो नीचे जैसे आएगा तो इधर भी उसका स्पीड वही रहेगा, बी मैक्स।
और फिर क्या करेगा वो, फिर कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? खटाखट, विच मोशन मैन? projectile. प्रोजेक्टाइल। ये वी मैक्स का वी मैक्स ही रहेगा। कहना इसे ये कितना हो जाएगा? सही है क्या? अरे भाई बोलो यार, Yes, sir. ये आपको मांगता है, सही है? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. अब मैं नंबर वंबर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नंबर तो आप लोग कर सकते हो। मुझे आप बताओ, पहले हम लोग जाते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, मतलब ए से लेके बी तक हम लोग जाते हैं। तो ए टू बी अगर जाना है तो कौन सा एनर्जी कौन सी एनर्जी में बदल रहा है? Spring potential energy to kinetic. हाँ, कैन आई से हाफ के एक्स स्क्वायर is converted into half mv maximum the whole square? हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया, तो v मैक्सिमम आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? के एक्स स्क्वायर बाय एम, रूट ऑफ दैट। हेलो हेलो, यस और नो? यार बोलो ना, सही तो है? Yes, sir. हेलो। एंड सीधा सीधा ये वी नेट निकाल लो, व्हाट इज वी नेट स्टैंड फॉर? अंडर रूट वी मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh का स्क्वायर है, 2gh ना, व्हिच इज दिस साइड, यस और नो यार? वी मैक्सिमम का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो यहाँ पर वी मैक्सिमम रूट के अंदर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, विल बिकम के एक्स स्क्वायर बाय एम प्लस 2gh रेज टू हाफ इज वी नेट। हेलो, आई ऑल सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? यार Yes, sir. नंबर वंबर तो यू कैन पुट ना अभी, यस और नो? नंबर तो वी कैन पुट ओनली, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसे ही क्वेश्चंस है। ओके ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला सम करना है? चलो आगे बढ़ते हैं। 15 वाला भी सेम ही है। 15 ये भी सेम है। चलो ये कर लेते हैं, फिर लास्ट 18 वाला कर लेंगे। A 0.5 kg block is attached to a spring of length 0.6 meter and a force constant this much. The mass of the spring is negligible. You can pull the block to the right along the surface with a constant horizontal force this much. What is the block speed when the block reaches point B, which is 0.25 meters to the right of block A? ठीक है, कैसे करेंगे यार? मैं अप्लाई करूंगा, ए टू बी जाना है। कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0 है ए पर। हेलो, वर्क डन कौन सा है? जल्दी जल्दी बोलो यार, वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? वर्क डन कौन कौन External. काम? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स इनटू, इसको एक्स पकड़ लेते हैं ना, चलेगा क्या? Yes, sir. माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, यस और नो? एंड अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से तो मिल जाएगा ना, एफ कितना है भाई? 20 इंटू एक्स इज 0.25 माइनस हाफ के 40 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम 0.5 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से v का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3.8 मीटर पर सेकेंड मिला, ए टू बी। अच्छा ठीक है, तो ये ए पॉइंट खत्म हो चुका। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है? व्हेन द ब्लॉक रीचेस पॉइंट बी यू लेट गो ऑफ द ब्लॉक, मतलब वो जो एक्सटर्नल फोर्स था आपने लगाना बंद कर दिया। इन द सब्सिक्वेंट मोशन हाउ क्लोज डज द ब्लॉक गेट टू द वॉल व्हेन द लेफ्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड? हाँ तो ठीक है ना,
कैन आई से यहाँ पर हमने फोर्स बंद कर दिया, कह रहा है ये उसका नेचुरल लेंथ है, यहां पर जब वो आया तो हमने उसको छोड़ दिया, ये 0.25 मीटर। कैन आई से वो दब कर अंदर जाएगा, इधर तक आ गया सपोज, आ गया कि नहीं? हेलो हेलो, कैन आई कॉल दिस एज ए? हेलो, यस और नो? हेलो, in the subsequent motion how close does the block get to the wall when the left end of the spring is attached, neglecting block and friction? okay, ठीक है। so ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। चलो शुरुआत करो। कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ, इधर काइनेटिक एनर्जी है बेटा इसके पास, इसके बाद वी है इधर, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ भाई, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज, या तो एक काम करते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इट इज बेटर टू अप्लाई इनिशियल एनर्जी इज फाइनल एनर्जी। ठीक है, चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। और कौन सा इनिशियल, ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। वर्क डन कौन सा हुआ? वर्क डन कौन सा हुआ बेटा? Spring. स्प्रिंग, मगर दो टाइप के वर्क है, दो टाइप के वर्क है, बोलो। हेलो, यस और नो? So why two? भाई एक तो स्ट्रेचिंग है ना उसके पास, और दूसरा वाला जब वो कंप्रेस होगा वो भी वर्क डन होगा कि नहीं होगा? हेलो, इसलिए बेहतर यहाँ पर है ना, ये कंफ्यूजन, So can't we just take P initial minus P final? वर्क डन कंजर्वेटिव की बात कर रहे हो ना आप? हेलो, हाँ वो भी कर सकते हैं, चलो वैसे ही कर लेते हैं, मैं इसके लिए से कर रहा था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv square. This is work done by conservative force or not? Hey bhai, yes or no? And work done by conservative force is what? Hello, hello, P initial minus P final. u initial minus u final, सबको याद है ना? तो p इनिशियल कितना है? हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के x फाइनल स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो होता है ना? यस और नो? हेलो, बिकॉज फाइनली आगे रुक जाएगा ना वो, यहाँ पर हाफ और हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, m is 0.5 इंटू v is 3.8 का स्क्वायर, हाफ के कितना है? 40 है। कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज x इनिशियल का स्क्वायर? 1 by 0.25, 0.25 है ना? हेलो हेलो, इज इक्वल टू माइनस साइन उधर जाके हो जाएगा k फाइनल स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। This is work done by spring and work done by conservative force, and work done by conservative force is what? U initial minus U final, where U initial is, this is the initial point and this is the final point. This we can do. ये नंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। This x final you will get, and you will get x final as 0.5 meter. This is 0.5, मतलब this is 0.5. I know this is 0.6. So how much is the distance from the wall? 0.1. 0.1 meter. ये आंसर है भाई। एंड में 0.1 मीटर आप लोग 0.5 मार्क मत कर देना, ठीक है? हाउ मच नियर टू द वॉल दे हैव आस्क्ड यू, ठीक है? ये चीज है। अगेन वी हैव यूज्ड दिस ओनली इन द बोथ द कंडीशंस। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अच्छा, ये चीज ट्राई मत करना क्योंकि ये अभी आएगा नहीं तुम लोगों, बिकॉज इट इज डन इन ऑसिलेशंस। दिस विल बी डन मोर इन ऑसिलेशन, बिकॉज स्प्रिंग सिस्टम अब तक मैंने पूरा आपको बताया नहीं है। मोर कम्स इन ऑसिलेशंस, ठीक है? 18 भी वही है एक्चुअली, 18 वाला कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं।
ये तो वही सम है, ठीक है देखते हैं चलो। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses are connected with the light spring constant k. The system is in equilibrium. What do you mean by equilibrium? F net equal to 0. एफ नेट इज 0 मतलब क्या? मतलब ये एक्स नॉट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हेलो, मतलब इतना वो दब चुका है नेचुरल लेंथ से ही, बराबर है क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? दैट मीन्स एम बी जी should become equal to kx naught. This is balancing. So at equilibrium position, mbg down is equal to kx naught. So x naught will be mbg by k. इतना आता है क्या? हेलो, Yes, sir. अरे भाई ये इक्विलिब्रियम है ना, और ये नेचुरल लेंथ है। Okay. The minimum value of initial downward velocity v naught of block B, कितना वेलोसिटी हमको देना है उसको, ताकि it will bounce up by 20 by root 3 n. Value of n is how much? हेलो यार, सही तो है। Okay. कितना दबाना है नीचे ताकि वो उठ जाए? अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच शुड आई प्रेस हिम डाउन? हाउ मच शुड आई प्रेस? हाउ मच? ये सबको आता है। शुड वी प्रेस बी? कितना प्रेस करना पड़ेगा? MA plus MBG by K. बाई के, बराबर क्या? अरे भाई अभी तीसरा समय ही है, यस और नो? ओके हेलो, तो इसको इतना प्रेस करना पड़ेगा, कितना? एम ए जी प्लस एम बी जी बाई के, इतना तो प्रेस करना ही पड़ेगा। कैन आई से द डिस्प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट शुड बी या डेल्टा शुड बी एम ए जी प्लस एम बी जी बाई के। बोलो भाई, हेलो हेलो हेलो। अच्छा एम ए जी कितना है, एम कितना वैल्यू है, 10 है, देखो ना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 बाई के 150, 200 बाय हेलो। अरे सब लोग अग्री होते हो क्या? यस और Yes, नो? sir. अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या दिया उसने, क्या दिया उसने? क्वेश्चन में लिखा है Velocity. क्या दिया? वेलोसिटी दिया। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल दिया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी। हेलो हेलो, कैन आई से हाफ एम बी नॉट स्क्वायर जो दिया, वही तो हाफ के डेल्टा स्क्वायर में बदल गया। हेलो, क्या कर रहा हूँ, लास्ट समय बाबा। हेलो, तो ये चीज खत्म हो चुकी। हाफ एम, एम कितना है, एम एस 10, वी नॉट स्क्वायर मालूम नहीं है, के कितना है, के बेटा 150 है, डेल्टा 4/3 का स्क्वायर है, तो बिकम 16/9। हेलो, ये 0 0 कट हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा, वी नॉट स्क्वायर विल बिकम 80/3, यस और नो? तो वी नॉट कितना हो गया? अरे यार बोलो ना, रूट ऑफ 80/3, यस और नो? हेलो, Yes, sir. मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ पर, कुछ गलती हो चुकी है मेरे से। आई थिंक सो 800/3 आना चाहिए, यस और नो? कुछ गलती हो रही है ना? No, sir, it's right only. इट्स राइट ओनली। तो So कैसे multiply करेंगे? divided by 5. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, हाँ 5 हो गया, सही है क्या? हाँ तो ये हो गया 20/√5
15 सॉरी यार, ये हो गया आंसर 20/3 × 5, तो n का वैल्यू कितना आया? 5 आ गया। बोलो हेलो। देखते देखते वर्क एनर्जी पावर खत्म हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद सर्कुलर मोशन एंड विल फिनिश। सर्कुलर मोशन में भी कुछ दम नहीं है, तो फटाफट वो भी खत्म हो जाएगा, and then we can start with our system of particles and second book the thing. Did you all understand beta work energy power? Yes, sir. Okay, so आप लोग प्रैक्टिस करिए थोड़ा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you.